Yes, once again, very good morning to all of you. So, bete, these days, the chapter which we are doing, that is our economics section, chapter 1, development. And we have come approximately to the end of this chapter. Last page is left. So, today, let us try to complete this work. And along with this last page explanation, we have to discuss our question answers also, plus activities also. Okay, see? So, without wasting any time, let us start. This is our second last page. You can see in your book also. But we were doing sustainability of development topic was going on. So as I told you earlier, what is meant by sustainability or sustainable development? That means when we make use of our available natural resources in such a manner that we people of the present generation, we judiciously use the available resources. Judiciously means carefully, without wasting. Judiciously use all the available things which have been given to us by nature, and along with that we have to save some resources for our future generations also. We have to conserve, we have to protect. Both words mean save karna, ठीक है, बचाना. So we have to save, we have to protect, we have to conserve some resources for our next generations, for our next children to come, who will come to this earth planet. We have to leave sufficient amount for them also. Otherwise what will happen, they will never come to know if we keep on using for example this all the minerals which we get from the this earth. If we consume all the minerals, then our next generation children, they will never come to know कि कोल नाम का भी कोई मिनरल होता था या क्रूड ऑयल नाम का कोई भी मिनरल होता था. उनको पता ही नहीं लगेगा. आयरन ओर होता था, they will not come to know, because अगर if we use consume all the things, then nothing will be left for the next people. ठीक है. So this was told to you. Then here it has been discussed कि two types of resources are there. One is called renewable resources, which get replenished themselves with period of time. अपने आप भरते जाते हैं, अपने आप complete होते जाते हैं, which get replenished. And on the other side, few resources are of non-renewable type, which do not get replenished in a very short period of time. They take millions and millions of years. And we people, ordinary people, cannot survive for so long. So in other words, we say that they do not get replenished. ऐसे भी बोल देते हैं within our lifespan. ठीक है. तो करोड़ ईयर्स तक तो कोई जीता नहीं है, तो हमें कब पता चलेगा वो दोबारा बने हैं कि नहीं बने. वी विल हार्डली कम टू नो एनीथिंग. ठीक. सो here in the book, one example of renewable type has been given. We have already discussed the problem of water. कि भी although it is a renewable source, but still there is problem कि if we keep on using and wasting water at the present speed, the way we are doing presently, then water will also come to an end. Water does not mean that water in oceans, water in the lakes and all that. Water here we refer to that water which we can drink. Ma'am, your voice is cracking. Yes, but there is network issue today. A lot of problem is there. Actually, screen sharing has also, it is also not taking place. I am trying. Please wait. Yes, due to net connectivity problem, there is such type of difficulty we all are facing today. So anyhow, what I was telling, by water we people mean safe drinking water, pure water which we can consume it in our daily life. Otherwise, the water is there in the oceans and all that natural places, but we have to pay attention to the drinking water. Okay? So that will come to an end if at the present speed the consumption takes place. And one example has been given कि underground water table level that is going down and down day by day because excessive consumption of water is taking place. On that day, I forgot to tell you about one example. Many times you see whenever we see the map of India, तो हम कहते हैं राजस्थान is a desert state, है ना, sandy state है वो. तो सैंडी स्टेट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट स्टेट का मतलब वहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ वाटर. जिस पार्ट में भी सैंडी एरिया है देयर इज एब्सेंस ऑफ वाटर. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो इन पंजाब हरियाणा बेल्ट, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी,
तो if here you have seen farmers most of the time they pay attention to a particular cropping cycle. Wheat के बाद paddy, फिर wheat, paddy. They pay attention to these two crops mainly, especially Punjab, Haryana, wheat and paddy. And उसमें से भी आउट ऑफ दीज टू जो पैडी क्रॉप होती है जिससे राइस बनता है, चावल बनता है, तो इन दैट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दैट पैडी क्रॉप वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. You would have seen in the this videos also, otherwise in the movies also, वहाँ नीज तक पहले पानी को पूल करते हैं, उसके बाद वो उसको प्लांट्स को सैपलिंग्स को लगाते हैं. तो इतनी ज़्यादा पैडी की राइस की प्रोडक्शन के लिए कल्टीवेशन के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड. तो इट इज सेड कि इफ इन पंजाब स्टेट स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट अवर ओन स्टेट, तो देन व्हाट विल हैपन इफ अवर वाटर कंजम्पशन लेवल moves on at the same pace, then quite possible in the coming 40 to 60 years Punjab will also face problems like Rajasthan. Punjab may also become come in a state where there is shortage of water, just like Rajasthan. तो see how grave our problem is this, कि भाई कितना serious है, but still our farmers are not paying attention to this. Again they keep on using the same cycle of crops instead of diversifying their crops, कि कुछ और grow कर ले, कोई fruits, vegetables या कोई और cash crop को grow करे, वो उसी चक्कर में रहते हैं कि हमने यही दो क्रॉप्स ग्रो करनी है. दे डोंट पे अटेंशन कि इससे वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ कमिंग टू दिस सेकंड पार्ट. सेकंड एग्जांपल इज एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल एंड वी नो क्रूड ऑयल क्या होता है. क्रूड ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स. इट इज अ काइंड ऑफ दिस इट इज ए काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, तो अब उसका एग्जांपल दिया हुआ है. यू कैन सी इन योर टेबल, but a new books ka table is to be followed, as I told earlier also. तो one table is given, so with the help of that table we can understand. इधर दिया हुआ है region. Region means area or country. तो one region means region may have many countries there. जैसे ये Middle East है, तो Middle East का मतलब Gulf countries. In your map you can see, world map में you can see Gulf countries या Middle East countries में आ जाते हैं हमारा this Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, ये अपना इजिप्ट, टर्की वाली साइड का कुछ पार्ट, जो गल्फ का कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना ये सारे, तो इनको गल्फ कंट्रीज़ भी बोलते हैं या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी बोलते हैं. तो देयर इज़ एक्सेसिव दिस क्रूड ऑयल, रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल. अर्थ के नीचे जो क्रूड ऑयल है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं वहाँ पे. देन सेकेंड कंट्री दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कंट्री है, और नीचे वर्ल्ड का दिया हुआ है. तो इधर क्या दिया हुआ है, I have old book, so I am not paying attention to this. You can see यहाँ पे we have been given 1000 million barrels according to 2017 data. 1000 million barrels. अब बैरल क्या होता है? बैरल होता है बड़े बड़े से हॉलो कंटेनर्स, जैसे दे आर हैविंग मोस्टली वी कैन से सिलेंड्रिकल शेप. उनकी शेप ऐसी हो सकती है, आप इमेजिन करो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. ढोलक होता है, ढोलक बजाते हैं ना, तो ढोलक का देखो जिस तरह की शेप होती है, इस तरह के कंटेनर्स होते हैं ऑफ वेरी लार्ज साइज. एंड इन वन बैरल कितने लीटर ऑयल आ जाता है उसमें? ऑलमोस्ट यू कैन राइट इफ यू वांट अप्रॉक्सीमेटली 158.98 लीटर्स. 158.98. तो हम कह सकते हैं, अगर रफली उसको रफ फॉर्म में लेके आना हो अप्रॉक्सीमेट, तो हम कह सकते हैं मोटा मोटा सा 160 लीटर्स. मैथमेटिकली ना भी जाएं, एक रफ फिगर, एक एवरेज फिगर याद करने के एंगल से अगर कहें तो ऑलमोस्ट 160 लीटर्स क्रूड ऑयल, तेल जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है एक बैरल के अंदर. तो नाउ यू कैन सी, यू कैन इमेजिन कि व्हाट टाइप ऑफ साइज एंड शेप ऑफ दैट बैरल कैन बी. ढोलक जैसी शेप, सिलेंड्रिकल शेप, बट बहुत बड़े साइज की. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कास्क, CASK, हॉलो वास्ट साइज्ड कंटेनर. ठीक है, तो हेयर ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 2017 में जो पोजीशन थी, तो उसके मुताबिक जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, ये सारे कंट्रीज़, नॉट ओनली वन कंट्री, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये पॉपुलर बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ये सारे. तो वहाँ पे कितना है? 808, यहाँ आपने करेक्ट लिखना है, 808,000 मिलियन बैरल्स हैं उन कंट्रीज़ के पास में. एंड कंपैरेटिवली अमेरिका के पास कितने हैं? ओनली 50.
Now we can well imagine America is far behind the Gulf countries, Middle East countries. America has only 50,000 million barrels of oil. अमेरिकन कंट्री के अंदर जो मिलता है, और पूरे वर्ल्ड में इफ़ वी इंक्लूड ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो वहाँ पे कितना है 1697 मिलियन बैरल्स. Obviously world में तो when we include all countries so obviously figure would be value would be more, but if we compare America and this Middle East countries, so America is far behind. जबकि on the other side we say America is the number one country in the world, super power उसको बोल देते हैं, या first country in the world, very developed country है ना. On the other side here it is given number of years reserves will last, कि जो मिडल ईस्ट के पास these number of barrels हैं with that much presence of oil, how many years work can be done? 70 years, 70. मतलब इतने तेल से 70 इयर्स तक का काम चल सकता है ये सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ का. और जो अमेरिका के पास स्टॉक है क्रूड ऑयल का, उससे उनके कितने साल का काम चल सकता है? दैट इज़ हार्डली फॉर 10.5 ईयर्स. राउंड फिगर करें ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स तक का काम अमेरिका में उतने क्रूड ऑयल से चल सकता है जो उनके पास अवेलेबल है. और पूरे वर्ल्ड में कितने सालों तक चल सकता है? यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट फिगर 50.2. पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑयल के रिसोर्सेज हैं, जितना भी ये अवेलेबल क्वांटिटी है, विद दैट अवेलेबल क्वांटिटी 50.2 राउंड फिगर पे कहे 50 ईयर्स तक हमारा पूरे वर्ल्ड का काम चल सकता है. नाउ वी कैन सी, वी कैन कंपेयर ऑल दीज वैल्यूज. 70 ईयर्स, 10 ईयर्स पूरे वर्ल्ड का लें क्योंकि वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ हैं, तो 50. ज़्यादा से ज़्यादा भी मान लें 60 ईयर्स, 70 ईयर और भी ज़्यादा मान लें, अगर हम थोड़ा सा और भी एक्सेसिव वैल्यू ले लें, 70 to 80 ईयर्स तक की कंजम्पशन का ही पूरे वर्ल्ड में इस समय ऑयल अवेलेबल है. सबको मिला लें, सारा कुछ कर लें तो ऑन एन एवरेज और ज़्यादा एक्सटेंड कर ले अगर हम अपनी वैल्यू को, तो हम एक रफली कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स तक चलने लायक पूरे इस दुनिया में क्रूड ऑयल है. ठीक. अब आप नाउ यू सी in the present time all countries of the world petroleum products, crude oil, उससे आगे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, they are very very important. Our industries run with the help of this petrol and diesel. Transportation में petrol diesel is required. For other various household things petroleum products are required. तो if and side by side what is happening, population of the world is also increasing. लोग भी तो बढ़ रहे हैं ना, so number of consumers is increasing day by day, but these reserves are रिजर्व होता है लिमिटेड क्वांटिटी में है. दीज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. वाई वी कैन नॉट इंक्रीज दिस? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन नेचर. देयर फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर. क्रूड ऑयल कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एफर्ट्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स. आप या मैं मिलके कोई साइंस की कोई इन्वेंशन भी कर ले तो पेट्रोल नहीं बना सकते हैं, मतलब पेट्रोलियम को रिप्लेस करने वाला एग्जैक्टली वैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं. हो सकता है हम उस तरीके से काम करने वाली कोई और चीज़ बना लें, बट इफ़ वी से कि हम जैसा क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे से आता है मिलता है हम बिल्कुल वो बना लें, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मैन मेड एफर्ट से ही वो पॉसिबल नहीं है, वो तो नेचर से ही बनेगा. सो दैट इज़ द सिनेरियो. तो देन इट इज़ गिवन. तो फिर हमारे कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया में अभी ये जो क्रूड ऑयल है, अवेलेबिलिटी ऑफ दिस क्रूड ऑयल इज़ वेरी लेस एंड अवर कंट्री हैज़ टू इम्पोर्ट दिस क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है. तो अवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मोर देन 135 करोड़ पीपल. तो वी राइट नाउ वी आर देयर, और डे बाई डे इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री is also increasing side by side. This transportation sector is also getting developed. For all these activities, economic activities, we need पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब क्रूड ऑयल, तो उसी से सारे बनते हैं. तो वी नीड ऑल दिस. ठीक है. तो फिर देन व्हाट टू डू? अपने पास है नहीं, तो देन व्हाट कैन बी डन? सो फॉर दैट पर्पस इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़. अब वो अदर कंट्रीज़ में ये मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ भी हैं. इंडिया बहुत सारा तेल वहाँ से भी लेता है, दूसरे कंट्री से भी थोड़ा बहुत ले लेता है, बट ज़्यादा जो डिपेंडेंस है इंडिया की दैट इज़ ऑन दीज मिडल ईस्ट कंट्रीज़. ठीक है. अच्छा, अब क्या होगा? अब इनके पास स्टॉक ज़्यादा है, तो नाउ व्हाट इज़ बीइंग डन बाय दीज कंट्रीज? they have made an organization. I think if you have seen one video which I sent in the class group, तो उसमें बताया एक there is one organization of petroleum exporting countries. शॉर्ट फॉर्म में उसको OPEC बोल देते हैं, ओपेक भी बोल देते हैं, OPEC.
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो नाउ दिस ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, ये मिडल ईस्ट के, तो वो इट विल डिपेंड अपॉन देयर विशेस, वो प्राइस बढ़ाना चाहें तो दे कैन इंक्रीज, और वो बढ़ाते भी रहते हैं। तो जब हम कहते हैं इंडिया में पेट्रोल महंगा हो गया है, तो उसका रीज़न ये होता है कि ये जो जिन कंट्री से हम बाय करते हैं, अगर वही प्राइस बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट दैट क्रूड ऑयल एट ए हायर प्राइस, मतलब वी हैव टू मेक मोर पेमेंट ऑफ मनी। तो फिर उससे क्या होगा, हमारा नुकसान ही है। उतनी ही चीज़ को लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, हमें महंगा तेल परचेज़ करना पड़ता है। और अगर एक्सपेंसिव ऑयल इज़ बीइंग परचेज्ड, तो ऑब्वियसली वो आगे भी एक्सपेंसिव रेट पे ही उसको सेल किया जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़ है वो भी बढ़ जाती है। सारे जितना कोई खर्चा करेगा तो वो अपना प्राइस भी बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इन द इकोनॉमी, प्राइसेस राइज कर जाते हैं। किसी चीज़ की जब कॉस्ट बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है बनाने का, तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं जी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, बहुत बुरी हालत है। तो उसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं होता है, मेनी रीजंस आर देयर। एंड उस इन्फ्लेशन के पीछे, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, बट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज दिस अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ दिस क्रूड ऑयल। ये एक बड़ा रीज़न है, ठीक। फिर यहाँ आगे बताया हुआ है कि फिर क्या करना चाहिए। यू कैन सी इज क्रूड ऑयल, इन वन क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज गिवन हियर, यू कैन सी इन योर बुक, ये वाला, is crude oil essential for the development process in a country? Discuss. So obviously we have to answer in affirmative. Yes, crude oil is very much essential because our present economic structure, our industries and all that, all sectors depend upon crude oil and its byproducts. So that is why it is very much important. We cannot do work without the availability of this crude oil in the present setup. And unless and until we don't replace this crude oil, this facility, अगर हम इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ लेते हैं, जब तक नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक वी हैव टू डिपेंड ऑन दिस क्रूड ऑयल। अगर हम इसकी जगह सोलर एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर दें, या विंड एनर्जी स्टार्ट करें, या कोई एटॉमिक एनर्जी, तब तो ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि 100% रिप्लेसमेंट हो तब हो जाएगा। बट अगर हम कहें कि कहीं इक्का दुक्का कुछ लगा ले, कोई प्लांट लगा ले, तो उससे पूरे कंट्री की नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सो प्रेजेंटली, एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, क्रूड ऑयल इज़ वेरी मच इसेंशियल, ठीक है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, वट प्रॉब्लम्स डू यू एंटीसिपेट। एंटीसिपेट होते हैं 4C, FORESEE। 4C मीन्स कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या इंट्यूशन होती है कि इसके करके क्या, वट प्रॉब्लम कैन बी देयर लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। तो ऑब्वियसली एंटीसिपेशन इज दिस, दैट we may have to make more payment for the imports, or these OPEC countries, Middle East countries, as per their wish, they can increase the price of crude oil whenever they want. It is up to them. So India has to make a payment of huge funds. So unnecessarily, it will increase our cost of production, and it will be a very problematic situation, not only for the industrialists, but for the ordinary people also. आप या मैं जब जाते हैं स्कूटर में, गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, तो ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा ना। इट विल अफेक्ट द बजट ऑफ द पीपल। ज़्यादा पैसे हमें उतने 1 लीटर तेल को परचेज करने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर मनी। तो इट इज़ गोइंग टू create a problem for the budget also, budget of the ordinary people. So it is a problematic situation, ठीक है। Then on next page, you can please see in your book, लास्ट पे दिया हुआ है कि यू कैन अंडरलाइन consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Very interesting line, you please underline this full para. इसका मीनिंग ये है कि जब whenever environmental degradation takes place, deterioration होता है अपने given level से नीचे आ जाना, means deterioration. Whenever it takes place, तो then it does not segregate, it does not distinguish between the different areas. अब इसका मतलब क्या है, जब भी पोल्यूशन होता है तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने इंडिया में होना है कि पाकिस्तान में होना है कि उसके आगे ईरान है, नेपाल है, मैंने किस कंट्री में होना है और किस में नहीं होना है। जब भी आप देखो, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। मेनी टाइम्स यू हैव सीन, ये अपना in the beginning of the winter, farmers in Punjab, Haryana, they start burning this parali, stubble जो होती है ना, उसको जलाना शुरू कर देते हैं. Although government has made many stringent laws, but still farmers violate them. वो पराली जला देते हैं, तो उससे जो धुआं होता है, स्मोक होता है,
वो चला जाता है दिल्ली वाली साइड पे, वो चला जाता है आगे थोड़ा सा राजस्थान वाली साइड पे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि दैट स्टबल वाज दिस उसको जलाया गया था, दैट वाज बर्न्ड इन पंजाब, तो उसका जो स्मोक है वो पंजाब में ही रहेगा। स्मोक को तो नहीं पकड़ सकते, दैट इज़ क्रॉसिंग द स्टेट्स, वो पाकिस्तान वाली साइड पे भी जा सकता है। सेम वे जो फार्मर्स इन पाकिस्तान है, इफ़ दे स्टार्ट बर्निंग देयर स्टबल, तो उसका जो स्मोक है दैट विल कम टू इंडियन साइड। तो दैट मीन्स कि जो ये पोल्यूशन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वन कंट्री या वन स्टेट, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल द कंट्रीज। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे आपने यू वुड हैव रेड इट इन साइंस ऑल्सो, इफ ग्लोबल वार्मिंग टेक्स प्लेस, तो व्हाट हैपन्स इन ग्लोबल वार्मिंग? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो उससे क्या होते हैं, उससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं, उससे गर्मी बढ़ सकती है, उससे और जो एनिमल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट है दैट गेट्स अफेक्टेड, सभी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो ये तो नहीं कह सकते ये ग्लोबल वार्मिंग चाइना के करके हुई है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइना पे ही पड़ेगा, या अमेरिकन इंडस्ट्रीज के करके हुई है ग्लोबल वार्मिंग तो उसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिकन लोगों पे पड़ेगा। नो, टेम्परेचर पूरी अर्थ का ही बढ़ जाता है। मतलब चाहे कोई एक कंट्री करे, चाहे कोई एक स्टेट करे, बट इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ। तो सी लेवल बढ़ जाए, सी वाटर गंदा हो जाए, पोल्यूशन हो जाए, तो सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। फ्लड्स आते हैं तो सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। वो कोई फ्लड कोई एक जगह में तो नहीं आता है कि एक स्टेट में ही आना है ना। कोई नेचुरल कोई क्लेमिटी आती है, वी कैन से, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम आए, है ना, तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल स्टेट्स, ऑल कंट्रीज, जो भी उस रीजन में आसपास पड़ेगा सभी को अफेक्ट करेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंट्री बचे रहेंगे। ठीक है जी। सो विद दिस वी कम टू द end of this chapter. ठीक है, तो now let us come to exercise part. Few questions we have discussed, few I sent you in the one PDF was also sent to you, so let us try to discuss first. जो question you can do with the help of discussion, पहले वो करते हैं, ठीक है। Then I will send the clues also, but that is a later stage. So I think we have done up to 5th question. यहाँ तक कर लिया था? Can anyone tell me? Why do we use averages? In what respect is the criteria used by UNDP? नहीं, भी हमने 4th क्वेश्चन तक किया था, बिकॉज अभी UNDP was not done at that time. 4th क्वेश्चन तक का हमने क्राइटेरिया कर लिया था, इफ आई एम एबल टू रिकॉल। तो वहाँ पे क्या था हमने किया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया, कंट्रीज आर कंपेयर्ड, they are divided in two parts, rich countries and poor countries, and this distinction is made on the basis of their per capita income, or the same is also known as average income. ठीक है, rich countries में if I am not wrong तो US डॉलर 12,056 US डॉलर पर एनम और मोर तो रिच कंट्रीज है, और पुअर कंट्रीज कौन सी हैं, 955 US डॉलर्स पर एनम, this much amount or less than this, तो those countries come in the category of poor countries. ठीक है, ये हमने कर लिया था। After that it was asked what are the limitations of this criteria, this मतलब per capita income criteria। तो limitations means drawbacks, shortcomings, weaknesses, कमियां जो होती हैं। तो क्या कमियां हैं? Per capita here we can make 3-4 points. We can say कि there are many limitations. Per capita income criteria does not pay attention to environmental problems. It pays attention only to economic side. Money wise income को देता है, ये ध्यान देता है, मतलब इनकम को ही कंसिडर करते हैं ना। वी डोंट पे अटेंशन टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन या डिटीरियोरेशन। इट डजंट पे अटेंशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे पीपल वांट safety and security in their life, people want respectful behavior from the society, people need various social facilities which can be given by the government of any country, people want welfare to be done by the government of the country, but all these things are not paid attention by per capita income method. I hope I am clear to everyone. The per capita income method ignores social aspects of life like education, health, housing. It ignores environmental issues like pollution, yeah, this contamination of river water, wastage of resources, cutting of trees. It ignores all these environmental aspects. ठीक है? It pays attention only to economic side. Economic होता है पैसों वाली side, money side को। तो ये सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देता है। रेस्ट एस्पेक्ट्स लाइक रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, डिग्निटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप,
जस्टिस इन द सोसाइटी, ये इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ पैसों को ध्यान देता है, इनकम को ध्यान देता है। ये आपने यू कैन मेक 4-5 पॉइंट्स इन दिस मैनर, शॉर्ट पॉइंट्स कैन बी मेड, ठीक है। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन एंड सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। हाँ जी मोक्ष, यू हैव रेज्ड हैंड बेटे, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आंसर देने के लिए किया फिफ्थ क्वेश्चन का। यस बेटा, मैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेज किया था। प्लीज बी लाउडर। फिफ्थ का मैं भी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हाँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन, अभी मैंने फोर्थ तक की बताया, ठीक है। फिफ्थ का मैं बताने लगी हूँ हाउ टू डू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, in what respects is the criterion used by UNDP for marine development different from one used by World Bank? Here in this question what we need to do, we have to draw a line in the middle, ठीक है, center में we have to draw one line and one side we will write World Bank criteria and other side we will write UNDP criteria, ठीक है, Human Development Criteria. फिर हम लिखेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया पेज अटेंशन टू पर कैपिटा इनकम, ऑन द अदर साइड वी राइट it pays attention to not only per capita income but also to health and education. किया था ना हमने पीछे, लिटरेसी, हेल्थ, एजुकेशन, ये उनको भी अटेंशन देता है। फिर आप कहोगे कि विद पर कैपिटा इनकम मेथड या वर्ल्ड बैंक मेथड वी जस्ट कम टू नो अबाउट रिच पुअर कंट्रीज एंड विद द हेल्प ऑफ HDI इंडेक्स या UNDP जो क्राइटेरिया, उससे हमें कंट्रीज का ओवरऑल वे ऑफ लिविंग पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, ऐसे कह सकते हैं। रिच पुअर कंट्री से हमें ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं पता लगती है, बट जो दूसरा है ये UNDP वाला है, उससे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी पता चल जाती है। फिर नंबर 3 पे इधर आप अमाउंट लिख सकते हो 12,056 और 955, इधर आप लिख सकते हो अदर एस्पेक्ट्स, नेम्स, पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 लिटरेसी लेवल, नंबर 3 क्या था, दिस व्हाट वाज देयर, नॉलेज या एजुकेशन, तो तीनों के नाम लिख सकते हैं, ठीक। आई विल सेंड द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, डोंट वरी। देन सेवेंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, sixth, why do we use averages? Are there any limitations to this use? This I will send, ठीक है। use, why do we use averages? Averages मतलब per capita income method, तो we make use of averages when there is large size of population in the country. जैसे I told in one of the examples also, population of Nepal and India, there is no comparison, है ना। अगर हम सिर्फ नेशनल इनकम को देखें तो नेपाल की नेशनल इनकम थोड़े से लोग हैं, थोड़ी है, और इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया का अमाउंट कुछ और होगा, तो कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर यहाँ पर पूछा कि क्यों एवरेज यूज़ करते हैं? एवरेजेस आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन्स बिकॉज कंट्रीज वेरी फ्रॉम ईच अदर विद रिगार्ड टू देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन, सबकी अपनी अपनी है, तो फिर उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद है आर देयर एनी लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन सेम ही है जो ऊपर क्वेश्चन नंबर हमने 4 में डिस्कस की है, कि जो एवरेज वाला मेथड है या पर कैपिटा इनकम मेथड है, इट डजंट पे अटेंशन टू एनवायरनमेंट, इट डजंट पे अटेंशन टू हेल्थ, डजंट पे अटेंशन टू एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, इट पेज अटेंशन ओनली टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सेम जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया, राइट। देन सेवेंथ क्वेश्चन, केरला, यहाँ पे बताया, यू कैन रीड, केरला में कि पर कैपिटा इनकम इज लो बट अदर एस्पेक्ट्स में इट इज बेटर, तो भी बताइए दिस पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए यूजफुल क्राइटेरियन एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज्ड। दिस क्वेश्चन इज नॉट टू बी रिटन इन द नोटबुक, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यू कैन मेंशन, नॉट टू बी रिटन इन द नोटबुक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नो, वी कांट इग्नोर पर कैपिटा इनकम इवन, ठीक है, ऑल्दो अदर एस्पेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट वी कैन, बिकॉज पर कैपिटा इनकम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन पर्पस, with if we pay attention only to education, only to health and ignore per capita income, then we cannot decide anything about the status of that country, ठीक है। आप सोच के देखिए, हमारे पास मनी इनकम है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, तो विल वी बी एबल टू गेट एजुकेशन? नो, हमारे पास मनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अपने लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, ठीक है। बुक्स कॉपीज़ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो फाइन,
they are also equally important, but without per capita income, without its study, they are insufficient. क्या इनसफिशिएंट है, अपने आप में अकेले में कोई भी पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है, तो सबको इकट्ठे ही लेके चलना पड़ता है. ठीक, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट टू बी रिटन, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया. तो इसमें क्या आ जाएगा, कोल. कोयला जो है प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कंजम्पशन है दैट इज ऑफ कोल इन अवर कंट्री. एंड सेकेंड पार्ट में पूछा व्हाट प्रॉब्लम कैन बी देयर, other possibilities 50 years now from now. So after 50 years, if we, and coal reserves are limited in the country because coal is a natural mineral, natural reserve hai, reserves are limited always. So if we keep on using this coal at the same rate, itni zyada consumption karte hain, so this coal reserve will also come to an end. There won't be any coal in the as a mineral in the land of our country. तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो बस सिंपली हार्डली इन 2-3 लाइन्स वी हैव टू आंसर कि कोल इज द मेन मिनरल विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी. इट हैज़ लिमिटेड रिजर्व्स, इट्स सप्लाई इज लिमिटेड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं, तो इट विल कम टू एन एंड. देन है व्हाई इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट. सस्टेनेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. तो यहाँ पे वी हैव टू टेल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट पेज अटेंशन टू एनवायरमेंट, इट टेल्स अस अबाउट द सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट, इट टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस टू कीप अवर एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री, इट टेल्स अस दैट वी हैव टू सेव अवर रिसोर्सेज फॉर द कमिंग जनरेशंस. ठीक है, ये सारे 3-4 पॉइंट्स वी कैन मेंशन. ठीक है, then next है earth has enough resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. very interesting point. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि whatever is available on this earth, we all people, total population on this planet, जितनी भी है 8 अरब के आसपास पॉपुलेशन है, तो if all the people carefully use as per their requirement only, एक्सेसिव यूज़ ना करें, थोड़ा थोड़ा सारे ही यूज़ कर ले, तो तब तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई एक पर्सन कहे कि नहीं सारे मैं ही ले लूँगा, है ना, ग्रीडी पर्सन बन जाए, तो फिर ग्रीड का तो देयर इज़ नो एंड. आप में से अकेला कोई एक बच्चा कहे इस अर्थ के ऊपर जितना गोल्ड है वो मेरा, इस अर्थ के ऊपर जितना क्रूड ऑयल है वो मेरा, इस अर्थ के ऊपर जितने मिनरल्स हैं, जो भी वट एवर इज़ देयर इन ऑन दिस अर्थ, वो सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगा और कोई नहीं. तो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब एक आदमी की भी फिर तो ग्रीड शांत नहीं हो सकती है, उसको ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता अगर कोई आदमी इतना लालच करता है. तो यहाँ पर यही है कि भाई डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू सी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ. सिर्फ ग्रीड करके हम काम नहीं चला सकते हैं, ये इसका मीनिंग है. ठीक है, फिर लिस्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे ऑब्जर्व अराउंड यू. तो व्हाट टाइप ऑफ डिग्रेडेशन वी सी अराउंड अस. अपने आसपास सोचो क्या देखते हैं हम लोग. प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इज देयर, है ना, स्ट्रीट्स में गार्बेज पड़ा होता है. प्रॉब्लम ऑफ स्मोक इज देयर ड्यू टू ओवर ट्रैफिक ऑन द रोड्स. पोल्यूशन इज देयर ड्यू टू इंडस्ट्रीज. जैसे आप देखो इन फगवाड़ा ओनली वो शुगर मिल से कितना स्मोक एमिट होता है, तो वो सारा एनवायरनमेंट में ही मिक्स होता है ना. तो ड्यू टू दैट मेनी पीपल दे फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सांस में मुश्किल आती है उनको. ट्रैफिक के करके पोल्यूशन होता है. देन अराउंड अस वी सी दिस वेस्ट वाटर, chemical mixed waste water which is thrown by the industries, drained by the industries, that also causes problems. तो ये सारी हमारे आसपास की प्रॉब्लम है. देन कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, ये भी हम बोल सकते हैं. या ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्वालिटी ऑफ लैंड, हेल्थ ऑफ लैंड ऑल्सो गेट्स डिटीरियोरेटेड. सो इन दिस मैनर यू मे राइट एनी 5-6 प्रॉब्लम्स वट एवर यू सी अराउंड यू. ठीक है, उसके बाद है हमारा एक टेबल वाला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन and 13th question. These are not to be done on the notebook. ठीक है, firstly ये सिर्फ understanding है, you can go through this question yourself. ठीक, so let me tell you question number 1, 2, 3, 7, then 12 and 13 not to be done on the notebook. ठीक, MCQ टाइप, टेबल टाइप ये नहीं करने हमने. I repeat 1, 2, 3, 7, then this last two, 12th and 13th question not to be done on the notebook, rest all to be done. ठीक है जी.
Then few activities were also given to you and extra questions. Now it's going to be over. Time is almost over. So we discuss those tomorrow. In the meantime, you can just start writing. Okay? Don't wait for the hints only. They will be sent note out. But try to think yourself. Okay? So and tomorrow get ready with your geography book also. After discussion, we will start geography chapter. ठीक है जी? Hardly 5 to 10 minutes will be required for completing all this. तो आपको फिर उसके बाद we will start geography chapter. With this, I want to thank you all.